Hello friends, welcome back to E to Z Academy Class 8 Chapter Judiciary Full Hindi Explanation. हम पहले थे स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स में, जहाँ हमने तीनों स्ट्रक्चर्स पढ़े, जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स। और अब हम पढ़ेंगे कि ये कोर्ट्स कैसे कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। Are these different levels of court connected to each other? Yes, they are. In India, we have an integrated judicial system, meaning that the decisions made by the higher courts are binding on the lower court. Another way to understand this integration is through the appellate system that exists in India. This means that a person can appeal to a higher court if they believe that the judgment passed by the lower court is not just. अब इसका मतलब है कि अब मतलब देर आर मतलब बहुत सारे लेवल ऑफ कोर्ट्स हैं इंडिया में। तो ये सारे कोर्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। मतलब अब सपोज़ किसी हायर कोर्ट ने, मतलब किसी सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कुछ डिसीजन लिया है, तो वो लोअर कोर्ट्स के लिए मतलब वो डिसीजन फॉलो करना स्ट्रिक्ट है। और फिर अनदर वे, मतलब अगर हम इसे दूसरे वे में समझना चाहें तो हम इसे अपीलेट सिस्टम के ज़रिए समझ सकते हैं। अपीलेट सिस्टम मतलब अपील सिस्टम मतलब रिक्वेस्ट। मतलब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा ये वो काम कर दो। अब अपीलेट सिस्टम में ऐसा होता है कि अगर सपोज़ दो लोगों के कोर्ट में केस चल रहा है, तो अगर मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट ने अपना मतलब डिसीजन ले लिया है, लेकिन वो अपोजिशन को मतलब जस्टिस नहीं लग रहा है, तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है कि आप हमारा केस की हियरिंग फिर से कराएं। तो फिर अब हम इसे अपीलेट सिस्टम को समझ सकते हैं बाय लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द अपीलेट सिस्टम बाय ट्रैकिंग अ केस। स्टेट Delhi administration versus Lakshman Kumar and others, 1985, from the lower courts to the Supreme Court. अब ये जो अपीलेट सिस्टम में हमें समझना है वो हम समझ सकते हैं एक केस को देख के, जो था दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स, जो हुआ था 1985 में। और वो केस डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके सुप्रीम कोर्ट तक गया था। In February 1980, Lakshman Kumar married 20-year-old Sudha Goyal and they lived in a flat in Delhi with Lakshman's brother and their family. On 2 December 1980, Sudha died in a hospital due to burns. Her family filed a case in court. When this case was heard in the trial court, 4 of her neighbors were called in as witnesses. They stated that on the night of December 1, they had heard Sudha scream and force their way into Lakshman's flat. There they saw Sudha standing in her sari in flames. They extinguished the fire by wrapping Sudha in a gunny bag and blanket. Sudha told them that her mother-in-law Shakuntala had poured kerosene oil on her and that her husband Lakshman had lit the fire. During the trial, members of Sudha's family and neighbor stated that Sudha had been subjected to torture by her in-laws and that they were demanding more cash, a scooter, and a fridge on the birth of their first child. As a part of their defense, Lakshman and his mother stated that Sudha's sari had accidentally caused fire while she was heating milk. On the basis of this other evidence, the trial court convicted Lakshman, his mother Shakuntala, and his brother-in-law Subhash Chandra and sentenced all 3 of them to death. In November 1983, the 3 accused went to the High Court to appeal against this verdict of trial court. The High Court, after hearing the arguments of all the lawyers, decided that Sudha had died due to an accidental fire caused by the kerosene stove. Lakshman, Shakuntala, and Subhash Chandra were acquitted. You may remember the photo essay on women's movement in class 7 book. You read about how in 1980s women's group across the country spoke out against dowry deaths. They protested against the failure of courts to bring these cases to justice.
The above High Court judgment deeply troubled women, and they held demonstrations and filed a separate appeal against this High Court decision in the Supreme Court through the Indian Federation of Women Lawyers. In 1985, the Supreme Court heard this appeal against acquittal of Lakshman and two members of his family. The Supreme Court heard the arguments of the lawyers and reached a decision that was different from that of the High Court. They found Lakshman and his mother guilty, but acquitted the brother-in-law Subhas because they did not have enough evidence against him. The Supreme Court decided to send the accused to prison for life. अब ये केस मैंने पूरा पढ़ लिया. अब मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी कि फरवरी 1918 में लक्ष्मण कुमार जो था उसने एक 20 year old गर्ल सुधा गर्ल से शादी की थी और फिर वो एक फ्लैट में रहते थे दिल्ली में लक्ष्मण के ब्रदर के साथ और लक्ष्मण के ब्रदर के साथ और उनकी फैमिली और उसके फैमिली के साथ. लेकिन 2 दिसंबर 1980 में सुधा जो थी वो हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी उसकी बर्न्स के लिए. और जब फिर उसके फैमिली में एक केस फाइल किया था कोर्ट में उसके इन-लॉज के खिलाफ. और फिर व्हेन दिस केस जब ये केस ट्रायल कोर्ट में चला तब उनके जो चारों नेबर्स थे सुधा के दिल्ली में उसके फ्लैट के आजू बाजू रहने वाले उनको विटनेस सबूत या एविडेंस के तौर पे बुलाया था. फिर उन्होंने ये स्टेट किया था उन्होंने ये कोर्ट में ये बोला था कि दिसंबर 1 पे उन्होंने सुधा को रात को 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा को चिल्लाते हुए देखा था और फिर वो लक्ष्मण के फ्लैट में ज़बरदस्ती घुस गए थे. फिर उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी जो उसने पहनी थी उसमें आग लग गई थी. और फिर उन्होंने एक वो गनी बैग होती है ना जिसमें चावल की बोरी हम ऐसे बोलते हैं चावल की बोरी गेहूं की बोरी वैसे ब्लैंकेट वगैरह रहते हैं ना जूट के ब्लैंकेट जूट के बैग्स उससे उसको लपेट के वो फायर एक्सटिंग्विश कर दी थी बुझा दी थी. और फिर सुधा ने उन सबको बोला कि उसकी मदर इन लॉ शकुंतला ने उस पर केरोसिन डाल दिया था और उसके हस्बैंड ने उस पर आग लगा दी थी. और फिर जब ये मैटर कोर्ट में गया ड्यूरिंग द ट्रायल फिर जो उसकी सुधा की फैमिली और एक नेबर था उन्होंने स्टेट किया था कि सुधा हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर सुधा को टॉर्चर किया जाता था और उसके इन-लॉज उसके डिमांड कर रहे थे मोर कैश पैसे के लिए स्कूटर के लिए और फ्रिज के लिए ऑन द बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड. As part of their defense, लक्ष्मण एंड हिज मदर स्टेटेड अब लक्ष्मण के डिफेंस के लिए उसके लॉयर ने क्या बोला कि सुधा को एक्सीडेंटली गलती से उसकी साड़ी ने फायर कैच कर ली थी जब वो दूध गर्म कर रही थी. और फिर ये सब एविडेंस वगैरह देखने के बाद ट्रायल कोर्ट ने ये बोला था कि लक्ष्मण उसकी मदर शकुंतला और उसके ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र को सब कुछ फांसी पे चढ़ाया जाएगा. सेंटेंस ऑल 3 of them टू डेथ. लेकिन फिर नवंबर 1983 में वो तीनों भी और जो 3 क्रिमिनल्स थे जो फांसी पे चढ़ाया गया था उनको वो हाई कोर्ट चले गए और अपील किया. अब हमने इधर देखा था अपीलेट सिस्टम का तो उन्होंने यही किया कि अपील किया रिक्वेस्ट किया हाई कोर्ट में कि ये डिसीजन जो ट्रायल कोर्ट ने लिया है वो गलत है हमारी वापस से हियरिंग होनी चाहिए. फिर जब हाई कोर्ट में हियरिंग हुई और उन्होंने पूरे लॉयर्स के आर्ग्यूमेंट्स वगैरह देखे तब उन्होंने हाई कोर्ट का डिसीजन ये था कि सुधा जो थी उसको गलती से उसकी साड़ी ने कैच कर ली थी फायर और लक्ष्मण शकुंतला और सुभाष चंद्र वो सब छूट गए थे. अक्विटेड छूट गए थे हम बोलते हैं ना कि एक बार वो जेल जा चुके हैं लेकिन दूसरे अपील सिस्टम में दूसरी बार वो छूट गए थे अक्विटेड हो गए थे छूट गए थे.
फिर अब इसमें ऐसा बताया गया है कि हमने क्लास 7 की सिविक्स की बुक में देखा था कि एक वुमेन की फ़ोटो नीचे ऐसे था कि एक 1980s में जो वुमेन का एक बहुत बड़ा ग्रुप था, उन्होंने मतलब प्रोटेस्ट किया था कंट्री में डाउरी डेथ्स के लिए। डाउरी की वजह से बहुत डेथ्स हो रही थी वुमेन की, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। और मतलब ये जब डिसीजन निकला था हाई कोर्ट का सुधा के अगेंस्ट, तब ये बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ गया था, डीपली ट्रबल हो गई थी वुमेन, इसलिए उन्होंने ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था। और उन्होंने जो पूरी ग्रुप थी वो वुमेन की, उन्होंने सेपरेट अपील की थी और वापस से अपील किया था सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो गलत है, आप हमारी हियरिंग फिर से कराइए। सुप्रीम कोर्ट को ये अपील किया था और ये हुआ था मतलब इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स IFWL के मतलब ज़रिए, वो एक मतलब हम बोलते हैं ना वुमेन लॉयर्स का ग्रुप होता है, उसके इससे था। हाँ, और फिर 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये सुना, अपील सुन ली और हियरिंग फिर से कराई, तब आर्ग्यूमेंट्स वगैरह सुन के सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि लक्ष्मण और उसकी मदर गिल्टी है, क्रिमिनल्स है, लेकिन उनके ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र था, उसके खिलाफ उनके पास ज़्यादा एविडेंस नहीं थे, तो वो उसको नहीं पकड़ पाए, लेकिन उन्होंने लक्ष्मण और उसकी मदर शकुंतला को लाइफ टाइम प्रिजन के लिए भेज दिया। फिर अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। मैं आपको ये बता दूँ कि जो ब्लू इंक में सारे क्वेश्चंस है, जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, उसके आंसर्स मैं आपको सबसे लास्ट वाली वीडियो में बताऊंगी और आप वो ज़रूर देखिएगा। अब ये है व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। अब ये जो लीगल सिस्टम होता है ना, लीगल सिस्टम, जस्टिस वाला सिस्टम, उसके 2 ब्रांचेस होते हैं। अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। The above case of dowry deaths fall within what is considered a crime against society and is a violation of criminal law. In addition to the criminal law, the legal system also deals with civil law cases. You read in Chapter 4 of how a new civil law was passed in 2006 to protect women against domestic violence. Look at the following table to understand some of the given significant difference between criminal and civil law. अब इसका मतलब है कि अब हमने ये जो मतलब जो डिफरेंट ब्रांचेस होती है लीगल सिस्टम की, वो 2 होती है, जो है क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। अब ये जो हमने अबव केस देखा था लक्ष्मण का और सुधा का, वो था क्रिमिनल लॉ के अंडर पड़ता है, वो जो है डाउरी डेथ जो कंसेप्ट रहता है वो क्रिमिनल लॉ के अंडर आता है। और मतलब अब हमने ये देखा कि क्रिमिनल लॉ से भी डील करता है लीगल सिस्टम, लेकिन सिविल लॉ से भी डील करता है। फॉर एग्जांपल मतलब चैप्टर 4 में हमने ये देखा कि सिविल लॉ जो था, एक सिविल लॉ पास हुआ था 2006 में, जो था टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। जैसे सुधा डोमेस्टिक वायलेंस से सफ़र कर रही थी, वैसे उस टाइप की मतलब लेडीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए सिविल लॉ पास हुआ था 2006 में। अब ये हम टेबल पढ़ेंगे। क्रिमिनल लॉ, अब क्रिमिनल लॉ की 3 प्रॉपर्टीज़ होती है, वो है डील्स विथ कंडक्ट और एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंस। फॉर एग्जांपल थेफ्ट, हैरेसिंग अ वुमन टू ब्रिंग मोर डाउरी, मर्डर। इट यूजुअली begins with the lodging of an first information report FIR with the police who investigate the crime, after which a case is filed in the court. If found guilty, the accused can be sent to jail and also fined. अब इसका मतलब है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ऐसी मतलब उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऐसी है कि क्रिमिनल लॉ जो है वो ऐसे केसेस से डील करता है जिसमें वो देखता है कि ऑफेंस हो रहा है। ऑफेंस मतलब फिजिकल हार्म, मारना कूटना, ऐसे ऑफेंसेस रहते हैं। फॉर एग्जांपल थेफ्ट, चोरी, हैरेसिंग अ वुमेन टू ब्रिंग मोर डाउरी, सुधा गोयल का केस, मर्डर मतलब किसी को किल कर देना, मार देना, तो ये सब ऑफेंस के अंदर आते हैं, इसलिए क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है। अब ये जब क्रिमिनल लॉ होता है, इसकी प्रोसीजर ऐसी है कि जब अपन पुलिस स्टेशन में जाते हैं, मतलब ऐसा कि हमको चोरी हुआ है, हमारे घर में ऐसा हुआ है, तो वो पुलिस पर्सन्स क्या करते हैं, पहले हम FIR फाइल करते हैं। FIR का फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट।
वो फाइल करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, मतलब छानबीन करती है कि एविडेंस फाइंड करती है, और फिर उनका जो ओपिनियन निकलता है कि कौन गिल्टी हो सकता है, तो उसको लेके वो केस फाइल होता है कोर्ट में। और फिर मतलब अगर कोर्ट में भी वही इंसान गिल्टी फाइंड हुआ, मतलब क्रिमिनल फाइंड हुआ, तो उसे जेल हो जाती है, या फिर जो भी मतलब नेसेसरी लॉ है वो उसके मतलब लाइफ टाइम प्रिजन होने चाहिए, या फांसी होना चाहिए, या फिर जेल भेजना चाहिए, ये हो सकता है नेसेसरी थिंग्स। अब सिविल लॉ में भी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। जो फर्स्ट है, डील्स विथ एनी हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, परचेस ऑफ गुड्स, rent matters, divorce cases. A petition has to be filed before the relevant court by the affected party only. In a rent matter, either the landlord or a tenant can file a case. The court gives the specific relief asked for. For instance, in a case between a landlord and a tenant, the court can order the flat to be vacant and pending rent to be paid. अब इसका मतलब है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी का मतलब है कि मतलब ये डील करता है, मतलब ऑफेंस के लिए ये डील नहीं करता है। ये डील करता है जब हमारे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हार्म होता है हमको, मतलब जैसे कि हमें राइट टू स्पीक है तो हमको किधर बोलने नहीं देते हैं, ऐसा है, तो फंडामेंटल राइट्स को हार्म होता है, तभी ये होता है, सिविल लॉ के अंडर जाता है केस। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, कॉरल, डिस्प्यूट मतलब सेल ऑफ लैंड मतलब ज़मीन बेचने के लिए, प्रॉपर्टी मैटर्स इन फैमिली, ऐसा होता है। परचेस ऑफ गुड्स, खरीदने के लिए, रेंट मैटर्स, किराए भाड़ा, ऐसे मैटर्स होते हैं। डिवोर्स केसेस भी होते हैं। अब इसमें जो होता है, जब हम ये केस लेके पुलिस स्टेशन जाते हैं, तब पहले क्या होता है, एक पिटीशन होता है, एफआईआर नहीं होती है, पिटीशन होता है, मतलब जहाँ सब लिखते हैं, करते हैं। पिटीशन हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर द रेविलेंट कोर्ट, मतलब एक पिटीशन लिखते हैं पुलिस वाले, और वो पिटीशन किससे आना चाहिए, जो मतलब जो पार्टी को मतलब ऐसा लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स हार्म होते हैं, तो उससे ही लिखा जा सकता है। लेकिन एक जो रेंट मैटर होता है उसमें या तो लैंडलॉर्ड या तो फिर टेनेंट, टेनेंट का मतलब है जो भाड़े से रह रहा है कौन से घर में, उसको टेनेंट बोलते हैं, वो एक केस फाइल कर सकता है, और लेकिन सिर्फ रेंट मैटर में। और फिर इसके बाद जब ये मैटर कोर्ट में जाता है, इसमें पुलिस कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, डायरेक्ट कोर्ट में जाता है मैटर। जब ये कोर्ट में जाता है, जब कोर्ट मतलब जेल वगैरह का ऐसा कुछ नहीं रहता है, कोर्ट जो स्पेसिफिक उधर चाहिए वही रिलीफ देता है। जैसे कि अगर एक रेंट मैटर में वो बोल सकता है कि मतलब ये फ्लैट खाली हो जाना चाहिए, और फिर जो पेंडिंग रेंट है वो पे कर दो, और फिर इसके बाद ये वेकेंट रहेगा। और फिल इन द ब्लैंक, अभी हमें ये टेबल देते हैं, फिल इन द ब्लैंक गिवन बिलो बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। अब ये है, इधर 3 रोज है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वायलेशन, ब्रांच ऑफ लॉ, प्रोसीजर टू बी फॉलोड। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स are persistently harassed by a group of boys like walking to school। अब ये जो है वो हैरेसिंग का है, मतलब फिजिकल हार्म हो रहा है ना, ऑफेंस हो रहा है, फिजिकल हार्म हो रहा है, तो अब ये किसके अंदर गिरेगा, ये गिरेगा क्रिमिनल लॉ के अंदर, बिकॉज इधर लिखे आ रहा है कि हैरेसिंग अ वुमेन कम्स अंडर क्रिमिनल लॉ। हाँ, और अब हम अब इसके लिए प्रोसीजर होता है एफआईआर, मतलब ये जो भी प्रोसीजर इधर यहाँ पर लिखे वाला, मतलब एक सेकेंड, जो भी प्रोसीजर इधर लिखी यहाँ पे है वही इसके लिए फॉलो करनी चाहिए। और फिर हम दूसरा केस देखते हैं। अ टेनेंट हु इज़ बीइंग फोर्स्ड टू मूव आउट फाइल्स अ केस इन कोर्ट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड। A tenant who is being forced to move out files a case in the court against the landlord। अब इसका मतलब है कि अब लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट है, मतलब इधर राइट का मतलब इधर सिर्फ राइट्स हार्म हो रहे हैं, फिजिकल हार्म कुछ नहीं हो रहा है, तो ये आएगा सिविल लॉ के अंदर। ये सब आता है सिविल लॉ के अंदर, क्योंकि इधर हमने साफ साफ लिखा है कि रेंट मैटर्स आर कमिंग अंडर सिविल लॉ, और इसके लिए जो भी प्रोसीजर है वो आती है इधर, वो इधर लिखी हुई है।
आप ये सब कॉपी करके उधर लिख सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे, डज एवरीवन हैव एक्सेस, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोड्स, ये हम अगले पार्ट में देखेंगे, पार्ट 5। सो आप ज़रूर आना, तब तक के लिए बाय बाय।